Welcome back to Tantra Physics classes, and it's a lecture on collisions continued. I have already delivered one lecture on collisions. There is one more lecture, and it may take one or two lectures. So today it will be collisions continued. Elastic collision, inelastic collision, there are few examples. Then there's a coefficient of restitution. Then when the two bodies collide, what is the loss in kinetic energy? We have to discuss so many things about collisions. And now today, elastic collision in two-dimensional. Elastic collision in two-dimensional. Yeah, elastic. Just a minute. It is elastic collision. Elastic collision in two dimensions. In two dimensions. Now see here. First of all, what is two-dimensional? Two-dimension means, you see, when the two bodies don't move in the same straight line before and after. Two-dimension means where two coordinates are involved, x and y. Yeah, x, z. Yeah, z, zy. So, but here we want to make it simple. We'll put the motion in x and y direction. It is x direction and it is y direction. So, this about here, the velocity of the two bodies is not along the line joining their centers. अगर मैं इस सेंटर और इस सेंटर को ज्वाइन करूंगा वो एक लाइन बने होगा, लेकिन ये जो u1 और u2 है, two velocities, they don't lie along that. These two velocities are not along that line. Therefore, this will not be a one-dimensional motion. So it's a two-dimensional. This body will hit it here obliquely, and it will be lifted off in the upward direction, that direction, and this will go in the downward direction. Okay, so this m1 will go like this and m2 will go like this. It will go at an angle of theta 1, then this will go at the angle of theta 2. And we suppose the collision is elastic. And in elastic collision, you already know kinetic energy is conserved. And moment is always conserved. Momentum of the two bodies before the collision and momentum of the two bodies after the collision is the same. Kinetic energy before the collision is equal to kinetic energy of the two bodies after the collision. During the collision, there is definitely kinetic energy is not that conserved. Whenever there is a contact, during the contact, kinetic energy is not conserved. It is being transformed into a deformation of the two bodies. But that is only for a transient, only for a small time. When two bodies hit each other, there's a deformation of the two bodies, and there is loss of kinetic energy, and potential energy of the two bodies increases. But when they regain their shapes, the kinetic energy is restored in the two bodies. So what is important is that kinetic energy before the collision of the two bodies is equal to kinetic energy, sum of the kinetic energy of the two bodies after the collision. During the collision, there is many things are happening. There is a two bodies, they compress each other, their internal dynamics change, so there is loss of kinetic energy during that transit period. But finally, kinetic energy is again the same as the two bodies, as the kinetic energy of the two bodies before the collision. Okay, there was a question in SC that what happens to the kinetic energy during the collision. The answer is during the collision, kinetic energy is not conserved, even in elastic collisions. It is well before and well after, not during. So I will show you that question later on when we do objectives on it. Okay. Now in this case, what are the equations that we are going to write, and which will solve all the problems of collision in two dimensions? The equations that I am going to give you, we should solve all the questions, because base equations are the same. First of all, in case of elastic collision, kinetic energy is conserved. That is simple. Writing the kinetic energy conservation is simple because it is a scalar. To write the scalars is very simple. So conservation of kinetic energy. Kinetic energy, initial
is equal to kinetic energy final, or kinetic energy not of either object, sum of the kinetic energies. So what's the kinetic energy of this body? 1 by 2 m1 u1 square plus second body ka 1 by 2 m2 u2 square is equal to, yes, what about final kinetic energy? 1 by 2 m1 v1 square plus 1 by 2 m2 v2 square. यह है पहला इक्वेशन जो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है. अच्छा, व्हाट अबाउट मोमेंटम कंजर्वेशन? मोमेंटम इज ए वेक्टर and it is conserved in both directions, in x direction and in y direction. In one dimensional motion it was only x momentum, so we don't need to write two equations for momentum conservation. But in two dimensions, momentum is conserved in two directions. In x direction momentum is conserved, in y direction momentum is conserved. So you can write two equations here for momentum conservation. In one dimensional motion you need to write only one equation for momentum conservation. What does that mean? Momentum conservation. Momentum conservation. Momentum conservation. See, look at this. Momentum of the two bodies, total momentum of the two bodies, initial momentum of the two bodies in the x direction is equal to momentum of the two bodies, final momentum of the two bodies in the x direction. ये पहला इक्वेशन है. x direction में momentum कंजर्व होता है. So whatever momentum is there in before the collision in x direction of the two bodies, the same is the momentum of the two bodies together in the x direction after the collision, because it's a vector, and every vector equation basically three equations. If momentum is conserved, it is x momentum is conserved, it is y momentum is conserved, it is z momentum is conserved. But we have only two equations here, two-dimensional motion, so it is only the x and y momentum that are being conserved. Okay, one more equation that we can write: initial momentum in the y direction is equal to final momentum in the y direction. These are the two equations that we can write for this kind of a situation. What is momentum in the x direction before? ये तो x का velocity है, ये भी तो x velocity है, तो दोनों x velocities है. तो what is x momentum here? L1 u1 plus m2 u2 is equal to, हाँ बताइए, sum of the two momenta in the x direction. What is this? It is x momentum. इसके pieces कर दीजिए. यहाँ का piece आएगा m1 v1 cos theta 1 और यहाँ का piece आएगा m1 v1 sin theta 1. अगर इसके दो pieces किए जाए तो यहाँ का piece आएगा m2 v2 cos of theta 2, तो यहाँ का piece आएगा m2 v2 sin theta 2. जब इसके दो pieces करो यूं और यूं, जब इसके दो पीस करो फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, तो क्या लिखूंगा मैं फाइनल मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन? m1 v1 cos theta 1 प्लस m2 v2 cos theta 2 हो गया हमारा इक्वेशन इन द एक्स डायरेक्शन. सो एक्स डायरेक्शन मोमेंटम इज कंजर्व्ड, दैट इज दिस इक्वेशन. This plus this is equal to this plus this. Now what about y? What is the y momentum initially? इसका y component क्या है? सारा मोमेंटम तो x डायरेक्शन में है, तो y मोमेंटम तो जीरो है. इसका मोमेंटम तो x डायरेक्शन में है और उसका इनिशियल y मोमेंटम जीरो है. इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन द y डायरेक्शन, दिस माइनस दिस. y तो ये है वर्टिकल, दिस माइनस दिस, that is m1 v1 sin theta 1 minus m2 v2 sin theta 2. नेगेटिव क्यों? बिकॉज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. सो दैट इज ऑल. सो इसका मतलब ये है कि ये जो इलास्टिक कोलिजन है, इन इक्वेशन फर्स्ट वन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तीन इक्वेशन से सारा कुछ हो जाता है. कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्यों ना हो, बस यही इक्वेशन आपको याद रखने. बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन. बिफोर द कोलिजन व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर द कोलिजन व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी. बिफोर द कोलिजन व्हाट इज द सम ऑफ द एक्स मोमेंटा, आफ्टर द कोलिजन व्हाट इज द सम ऑफ द एक्स मोमेंटा. बिफोर द कोलिजन व्हाट इज द सम ऑफ द वाई मोमेंटा, आफ्टर द कोलिजन व्हाट इज द सम ऑफ द वाई मोमेंटा. बस दैट्स ऑल, फिनिश्ड.
बेस, दीज आर द बेस रूल्स। ऑब्जेक्टिव तो प्रॉब्लम्स वो होते रहेंगे। अच्छा, नाउ लेट मी गो टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज inelastic collision. Inelastic, okay, two-dimensional inelastic collision. Two-dimensional. Point number second. Point number second. Two-dimensional inelastic collision. टू डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन। आपको जानना होगा कि इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व तो रहेगा, बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। At least you can write two equations here also, but kinetic energy is not conserved, so you can't write conservation of kinetic energy equation. So let me suppose this same collision is inelastic. इसने इसको हिट किया यहां पर, अब मैं इसी सिचुएशन को इनइलास्टिक समझूंगा। यही फिगर है, इस बॉडी ने इसको हिट किया obliquely and this goes in the downward direction, this goes in the up direction. Let me suppose both theta 1 theta 2 are the angles. Theta 1 is the angle with which it makes with the x direction final momentum. Theta 2 is the angle which the momentum of the second body makes with the x direction. So what are the equations that we can write in this case? First of all, kinetic energy is not conserved, so you can't write the conservation of kinetic energy equation, but momentum is anyway conserved, so you can write momentum conservation here also. That is conservation of x momentum, p1x is equal to pix is equal to pfx, and pif is equal to pf piy is equal to pfy. It is conservation of momentum in the x direction, it's conservation of momentum in the y direction. So what you are going to write for the same equation as before, that is m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 cos theta 1 plus m2 v2 cos theta 2. ये एक इक्वेशन। यहां इसके लिए क्या लिखोगे जरा देखिए, इसका x मोमेंटम, इसका y मोमेंटम और इसका y मोमेंटम, 0 प्लस 0 बिफोर द कोलिजन, और जब कोलिजन हो गया तब जाकर फाइनल मोमेंटम, दैट इज m1 v1 sin थीटा 1 माइनस नीचे वाला m2 v2 sin थीटा 2, दैट्स ऑल। सो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, इस पर सेम इक्वेशन, सेट ऑफ इक्वेशन है, सिर्फ मोमेंटम का कंजर्वेशन आपको लिखना है, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन आप नहीं लिख सकते, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। And don't forget that what I have told you just now, during the collision, even in elastic collision, kinetic energy is not conserved. There's a deformation of the two bodies when they strike each other, but afterwards they regain their shapes and get back the kinetic energy finally. Right? Okay. Second point. Third one. Third point. Okay. Inelastic collision का और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। यहां तो वैसे दो बॉडीज हिट करके सेपरेट हो गए, ये इनइलास्टिक है, लेकिन परफेक्टली इसको इनइलास्टिक मत समझो। जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं तो वो दो बॉडी का एक ही बॉडी हो जाता है, तो एक दूसरे में सुपर इम्पोज हो जाते हैं, और कोलिजन के बाद वो एक ही बॉडी बन जाता है। इतना ज्यादा कोलिजन हो जाता है, इतना ज्यादा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, उसमें दो बॉडीज का एक ही बॉडी हो जाता है। उसमें आप बताइए what mathematics or what physics we can do for that? Third point. जरा देखिए, third, simple, perfectly inelastic collision. अच्छी तरह से देख लो, इक्वेशन को याद रखो, और जो इक्वेशंस के सिंबल्स है, जो सिंबल्स इक्वेशंस के हैं, उनका ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग एंड देन यूज इन द रियल टाइम प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस, ऑब्जेक्टिव्स। यू मस्ट नो व्हाट इज व्हाट। मतलब जैसे यही कि इनिशियल मोमेंटम में क्या क्या आता है, मास इनटू वेलोसिटी,
mass, velocity, mass and velocity, but in the x direction. Finally, mass, velocity in the x direction. That you must know. You must understand the, जब फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करना होता है तो फॉर्मूला में जो सिंबल्स होते हैं, their meaning you need to understand fully well. That is what we understand by concept. तो जैसे ये कि F is equal to ma, तो F पता होना चाहिए F क्या है, M पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए. F, you say it is force. It is force, but it is the external force acting on the body that you have to collect and that you have to find the resultant of. Is equal to mass जो है बॉडी का और एक्सेलरेशन जो बॉडी में कॉज होता है उस रिजल्टेंट की फोर्स की वजह से. So these things one needs to know symbols and then you need to apply things. Okay, ये देखो, ये मास m1 बॉडी है और इसका वेलोसिटी जो है वो u1 है. हमेशा मैं u1 ही देता हूं वेलोसिटी बिकॉज u1 मोस्टली इंडिकेट्स इनिशियल वेलोसिटी. और ये दूसरा बॉडी है m2 से और इसका वेलोसिटी समझो u2. दोनों बॉडी एक दूसरे को हिट करते हैं, राइट, और एक ही बॉडी हो जाता है. ये बहुत ही कोलाइज विद ईच अदर. तो फाइनली इनका वेलोसिटी v हो जाता है सपोज, और मास हो जाता है m1 प्लस m2. ऐसे. तो व्हाट वी शुड राइट, और ये हेड ऑन कोलिजन है तो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन दे ऑल मूव इन द सेम स्टेट. अगर ओब्लिक कोलिजन है और दोनों बॉडी का एक हो गया तो टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगा. मतलब ऐसे कुछ, अगर ये बॉडी ऐसे है, मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, और ऐसे कुछ इसने यहां इसको हिट किया ओब्लिकली, यहां हिट किया, यहां नहीं, यहां हिट किया, ओब्लिकली हिट किया, तो दोनों बॉडी एक बॉडी बन करके दोनों बॉडी एक ही बॉडी हो करके, अगर इसका भी वेलोसिटी है कुछ, सपोज ये वेलोसिटी u2 है, राइट, दोनों बॉडी हिट करके शायद ये बॉडी पूरा मिलाकर इस डायरेक्शन में मूव करे. वो कोई जरूरी बात नहीं है ऐसे मूव करना चाहिए m1 प्लस m2. इस सूरत में क्या करेंगे और इस सूरत में क्या करेंगे, देखो मैं समझाता हूं आपको. द ओनली इक्वेशन दैट वी कैन राइट इज मोमेंटम कंजर्वेशन. और ऊपर मैं आपको बताता हूं PI इज इक्वल टू PF. क्योंकि एक्स डायरेक्शन में सारा कुछ है तो दो इक्वेशंस तो होंगे नहीं, सिर्फ एक इक्वेशन होगा, बिकॉज ऑल द बॉडीज आर इन द एक्स डायरेक्शन. सो व्हाट इज PI? m1 u1, चलो वेक्टर कर दो, जरूरी भी नहीं है अगर ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन, प्लस m2 v2 u2, ये इनिशियल मोमेंटम दोनों का सम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. कोलिजन के बाद m1 प्लस m2, ये v, खत्म खेल. और व्हाट अबाउट v? फाइनल वेलोसिटी इन दो का जो है u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2. ये हो गया इस बॉडी का फाइनल वेलोसिटी दैट वी गॉट फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट. दिस इज मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, दिस इज मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, राइट. लेकिन इसके लिए जो दूसरा सिचुएशन है, इसके लिए हमें दोनों मोमेंटा कंजर्व करने पड़ेंगे. वो है PIX इज इक्वल टू PFX और PIF इज इक्वल टू PIY is equal to PFY. Initial momentum in the x direction, sum of the two bodies. Total momentum of the two bodies in the x direction is equal to total moment of the two bodies in the x direction after the collision. Total momentum of the two bodies before the collision in y direction is equal to total momentum of the two bodies after the collision in the y direction. So दोनों मोमेंटा, दोनों कंपाउंड्स हमें कंजर्व करने पड़ेंगे यहां पर, क्योंकि ये टू डायमेंशनल मोशन होगा. ये एक डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में, ये पता नहीं किस और डायरेक्शन में, लेकिन प्लेन में ही होगा. This will happen in the plane. This will happen in the straight line. Okay. Now let me go to the another point. That is, I will define a parameter. I will define a parameter which will determine elastic and inelastic collision. To what degree it is elastic? Although all the collisions are not perfectly elastic.
and all the collisions are not perfectly inelastic. There is some degree to which they may be elastic or they may be inelastic. Maybe some collisions are 50% elastic and 50% inelastic. So for that, I had to use a parameter which will determine to what level this is elastic or to what level it is inelastic. Maybe it is 100% elastic, maybe it's 50% elastic, maybe it is perfectly elastic. उसके लिए क्या measuring parameter है, तो उस measuring parameter को हम define करेंगे. Okay, fourth point. Coefficient of restitution. Coefficient of restitution मैं define करना चाहता हूं. Restitution ये मैं डिफाइन करना चाहता हूं. क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? लिखा जाता है लाइक E. जब दो बॉडीज कोलाइड करते हैं, बिफोर द कोलिजन दे हैव वेलोसिटीज एंड आफ्टर द कोलिजन दे मे हैव वेलोसिटीज. बिफोर द कोलिजन दे अप्रोच ईच अदर बिकॉज दे हैव टू हिट ईच अदर. आफ्टर द कोलिजन दे मे रिसीड अवे फ्रॉम ईच अदर. So there are velocities of the two bodies before the collision. There are velocities of the two bodies after the collision. तो coefficient of restitution कैसे हम define करते हैं? Velocity of recede v2 minus v1 by velocity of approach u1 minus u2. ये है अगर दो bodies है, ये इसका velocity u1 है और इस body का velocity u2 है. collision के बाद यहाँ collision हो गया, समझो, और collision के बाद इसका velocity v1 और इसका velocity v2 समझो. तो what is velocity of recede? v2 minus v1. What is velocity of approach? u1 minus u2. और आपको पता है कि अगर inelastic collision पूरा है, अगर इसका velocity u1 है और इसका velocity u2 है और पूरा inelastic collision है, तो इन दो बॉडीज का एक ही बॉडी हो जाएगा और उस पूरा का velocity v होगा. तो इस सूरत में वेलोसिटी ऑफ रिसीड है नहीं, क्योंकि दो बॉडी का एक ही बॉडी हो गया, तो वो एक दूसरे से जुदा तो हो नहीं रहे हैं. इसका मतलब यह है कि यहां इस सूरत में वेलोसिटी ऑफ रिसीड इज जीरो. इन परफेक्ट इनलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी ऑफ रिसीड इज जीरो बिकॉज टू बॉडीज बिकम ए सिंगल बॉडी, दे डोंट रिसीड अवे ईच अदर. सो v2 माइनस v1 इज जीरो बिकॉज इट्स ए सिंगल बॉडी. अच्छा, तो यह है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ रिसीड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो आपको पहले ही लेक्चर में मैंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ रिसीड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन. तो इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों बराबर है. पहले ही लेक्चर में मैंने ये पहले ही साबित किया था. अगर साबित नहीं किया था, कम से कम मैंने ये आपको बताया था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ रिसीड इक्वल है. और अगर ये इक्वल है, दैट मींस E इक्वल टू 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. और अगर इन दोनों बॉडीज का एक बॉडी हो गया इनइलास्टिक में, पूरा इनइलास्टिक कोलिजन में, उसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रिसीड जीरो है. उसका मतलब ये ऊपर हो गया जीरो, तो नीचे कुछ भी हो लेकिन ये तो जीरो ही होगा. परफेक्टली इनइलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन. तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जीरो हो जाएगा और परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1 होगा. लेकिन जो परफेक्टली इलास्टिक ना हो, पार्शियली इलास्टिक हो या पार्शियली इनइलास्टिक हो, तो E इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0. ये है रेंज उन कोलिजन्स के लिए जो थोड़ा इलास्टिक है, थोड़ा इनइलास्टिक. जो पूरा इलास्टिक इनइलास्टिक के कैटेगरी में नहीं फॉल होते हैं, तो उनका E या तो 1 से कम होगा लेकिन 0 से ज्यादा होगा. सो इट इज पार्शियली. ये तो कंडीशन है. दिस वन इज पार्शियली इनइलास्टिक. ये आप याद रखेंगे. इट इज जस्ट टू मतलब ग्रेडिंग द इलास्टिक कोलिजन्स. E is 0 perfectly inelastic, E is 1 perfectly elastic, E is less than 1 greater than 0 partially elastic or inelastic. ओके, चलो यह फोर्थ पॉइंट. लेट मी गो. हाँ, यहां पर एक कंफ्यूजन है जरूर, मैं आपको वो कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूं बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट.
before we go to the next point, I want to clear that thing to you. फिफ्थ पॉइंट, ये देखिए, सपोज ये वॉल है यहां पर और एक ऑब्जेक्ट है, इसने इसको ऐसे स्ट्राइक किया, यूं बॉडी यूं स्ट्राइक इसको किया ऐसे, it will be reflected back like this. Suppose it is velocity is v1 here and it comes back with the velocity v1 और v2. तो अगर v1 और v2 डिफरेंट है, समझे कोलिजन इलास्टिक नहीं है. जैसे एक वॉल है, आपने बॉडी हिट करा है वॉल को, इट रिफ्लेक्ट्स बैक, और जब ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है विद द सेम स्पीड, देन यू से इट इज इलास्टिक कोलिजन ऑलवेज, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी हैज बीन कंजर्व्ड फॉर द ऑब्जेक्ट. वॉल तो रेस्ट में है, आपने ऑब्जेक्ट फेंका, वापस आया विद द सेम स्पीड, मीन ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व हुआ, तो इलास्टिक कोलिजन हुआ. उस सूरत में ये दो वेलोसिटी सेम, ये दो स्पीड सेम होती. वेलोसिटी तो वैसे भी डिफरेंट है बिकॉज इट हैज बीन रिफ्लेक्टेड बैक. तो उस सूरत में जो ये एंगल होता है, ये θ1 है और ये θ2 है. जनरली आप इसको कहते हैं θ1 θ2, वो इलास्टिक कोलिजन के लिए होता है. यहां पर नहीं होगा. इलास्टिक कोलिजन में ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होते. ये जैसे लाइट में भी आप पढ़ते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और बिलियर्ड बॉल आपने हिट कर दिया किसी वॉल पर, इट कम्स बैक, वहां भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही लिखते हैं, क्योंकि यू सपोज दैट टू बी इलास्टिक कोलिजन. अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं है तब ये आप ये θ1 और θ2 इक्वल नहीं है. तो ये भी आप क्लियर कर लीजिए. तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू द वॉल? व्हाट इज वेलोसिटी? चलो मुझे इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है, तो क्या लिखूं मैं, जरा बताइए क्या लिखूं मैं? यू फील वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v1 है और वेलोसिटी ऑफ रिसीड, ये जो वॉल से भाग रहा है ये ऑब्जेक्ट, किस वेलोसिटी से भाग रहा है? v2 से. और शायद आप समझोगे ये v2 है वेलोसिटी ऑफ रिसीड और v1 था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू द वॉल. वॉल तो रेस्ट में है, इसलिए वो u2 माइनस u1 और v2 माइनस v1 का जो होगा वो एक ही वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये रेस्ट में. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये है, वेलोसिटी ऑफ रिसीड ये है. आप ये ऐसे लिखेंगे शायद, लेकिन ये गलत है, ये गलत. यू आर टेम्प्टेड टू बिलीव इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ रिसीड, अप्रोच रिसीड. आपको इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करने और इसके भी दो कंपोनेंट करने, और जो अप्रोचिंग कंपोनेंट है वॉल का वो आपको कंसीडर करना है. देखिए ऐसे, तो अगर मैं इसके दो कंपोनेंट, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करूंगा मैं, एक ऐसे दूसरा ऐसे, ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है ये v1 cos θ1 है. शायद आपको समझ नहीं आ रहा है. चलो मैं आपको ये तरीके से दिखाता हूं, हैव ए लुक. शायद ये ठीक तरह से मैं नहीं दिखा पा रहा हूं. देखिए, चलो यहां ये कर दीजिए ऐसे और ऐसे, और यहां कीजिए इस वेलोसिटी का, इस वेलोसिटी का कीजिए ऐसे और ऐसे. या तो अगर ये θ1 है, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स में निकालना चाहता हूं इस v1 के थीटा, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, θ1 है. तो इस वेलोसिटी का, अगर ये वेलोसिटी v1 है तो इट इज v1 cos θ1, इट इज v1 sin θ1. हो गया. तो इसके कंपोनेंट्स, अगर ये थीटा है तो यहां ये θ2 है, तो अगर ये v2 है यहां पर, तो ये कौन सा कंपोनेंट है? v2 cos θ2, और ये वाला कंपोनेंट v2 sin θ2. जो अप्रोचिंग वेलोसिटी है वो ये वेलोसिटी है वॉल के, और जो अप्रोच हो रहा है ये नहीं है. ये वेलोसिटी कभी वॉल के, इस बॉडी को वॉल के ओर नहीं ले सकता ये वेलोसिटी, ना ये वेलोसिटी इसको वॉल से दूर ले जाएगा. इसको वॉल से दूर ले जाएगा ये वेलोसिटी, और वॉल के नजदीक ले जाएगा ये वेलोसिटी. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिसीड. ये बोर्ड है, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा ये मेरा वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, तो मैं बोर्ड के ओर कभी नहीं आऊंगा. बोर्ड के ओर मुझे आना है तो मुझे ये वेलोसिटी कंपोनेंट चाहिए. अगर मेरा वेलोसिटी ये है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ये और ये, तो ये वाला कंपोनेंट मुझे बोर्ड के ओर ले जाएगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल हियर. तो असल में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू v2 वेलोसिटी ऑफ रिसीड cos θ2
divided by v1 cos theta 1. It is velocity of recede, it is velocity of approach. Don't think that v1 is the velocity of approach or v2 is the velocity of recede. Be careful about that. Okay, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था. Okay, should I rub it off? चलिए, हो गया ये. Now sixth point. Sixth point बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वो ये कि जब during inelastic collision there is a loss of kinetic energy because kinetic energy is not conserved. I want to tell you how much is the loss in kinetic energy. Kinetic energy का loss कितना होता है, वो भी तो एक क्वेश्चन है. We have to know that. How much is the kinetic energy loss? अब देखो जरा, जब दो, suppose there are two cars moving in the opposite directions with heavy kinetic, with huge kinetic energies, when they strike, whole of their kinetic energy is lost. The huge hit on heavy collision, opposite direction and inelastic, सारा kinetic energy खत्म हो जाएगा. तो हमें देखना होगा कि अगर दो बॉडीज है, चलो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग inelastic collision. ठीक है, ओके. ये देखिए, तो क्या होगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर डेरिवेशन भी कर लें तो कैसे करोगे. चलिए, ये बॉडी है, इसका m1 मास है, वेलोसिटी u1 है. ये दूसरा बॉडी है, m2 मास है, वेलोसिटी u2 है. कोलाइड हो गए, सेपरेट हो गए फिर से, क्योंकि परफेक्टली इनलास्टिक तो है नहीं. इट इज v1 m1 और ये बॉडी m2 और v2. ये टू बॉडीज, इट हिट्स इट, द कोलिजन, and now there is a, मतलब two bodies separate and they have respective velocities v1 and v2. अगर आपको मैं कहूंगा व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, बहुत सिंपल है. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि देयर विल बी लॉस तो ये ज्यादा होगा, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगा. तो आप लिखेंगे 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर. हाँ, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, ये वाला लॉस की बात कर रहा हूं. अगर चेंज होगा तो फिर दिस माइनस दिस, लेकिन लॉस आपको पता है लॉस है तो ये ज्यादा होना चाहिए. सो 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर. ये है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. सर्टेनली देयर विल बी लॉस. अब आपको पता है v1 और v2 को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है बाजाबता बाय राइटिंग मोमेंटम इक्वेशन. वही तो लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन तो लिख नहीं सकेंगे आप, लेकिन मोमेंटम का कंजर्वेशन लिख सकते हैं आप. एंड फाइनली लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ द मास डिवाइड बाय m1 प्लस m2. इसको कहा जाता है रिड्यूस्ड मास, भी दो बॉडीज का रिड्यूस्ड मास, ऐसे कुछ, इनटू u1 मगर वेक्टर माइनस u2 वेक्टर. ये इन दो का डिफरेंस, टू वेक्टर्स, और मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर. आंसर ये है इक्वेशन. इन दो का जो वेलोसिटीज है ना, उनका डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर. ऐसा मत कहो कि इट इज u1 माइनस u2, इसको निकालना पड़ेगा. अच्छा, मैं लिखता हूं ये किसके बराबर है वो भी बताता हूं. u1 माइनस u2 स्क्वायर, ये मैं लिखता हूं. लेट मी राइट इट डाउन सो दैट यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन. इट इज u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस u1 u2 cos थीटा. ये है, इसको लिखना पड़ेगा ताकि आप इसको याद रखो. u1 माइनस u2 उसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स u1 u2 cos ऑफ थीटा. व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन, किसके दरमियान है ये एंगल? u1 और u2 के दरमियान.
u1 एंड u2, दैट्स ऑल, खत्म बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। चलो, आई विल यूज दिस इक्वेशन in some cases, in one case at least, because I am not solving problems right now, or I am not doing objectives and applications right now, but when we solve those questions and problems, I will remind you of this equation. लेकिन फिलहाल मैं एक केस में ये यूज करूंगा। Let me use in one case this equation so that you understand what it means. सेवंथ, चलिए, ये बॉडी है, इसका मास m है और वेलोसिटी u है। ये दूसरा बॉडी है, इसका मास भी m है और इसका वेलोसिटी भी u है, अपोजिट। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस मोमेंटम? टोटल बॉडी का मोमेंटम क्या है? mu। टोटल बॉडी का मोमेंटम बताइए बिफोर द कोलिजन, mu I, अगर ये I डायरेक्शन है, x डायरेक्शन I, प्लस इसका मोमेंटम mu माइनस I, बिकॉज इसका मोमेंटम x के उल्टा है, सो दैट इज mui माइनस mui, दैट इज जीरो। सो इनिशियल मोमेंटम इज जीरो। इसका मतलब जब ये कोलाइड करेंगे इनइलास्टिकली, जब कोलाइड करेंगे, दे विल कोलाइड टुगेदर बिकॉज फाइनल मोमेंटम दे हैव टू स्टॉप। अगर या तो रिबाउंड करेंगे विद द सेम वेलोसिटीज, विद द सेम स्पीड, सो दैट फाइनल मोमेंट इज अगेन जीरो, वो भी हो सकता है। या ऐसे करेंगे, यूं आए यूं गए, तो मोमेंटम कंजर्व फिर भी रहता है। लेकिन अगर इनको इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व करना है तो दे विल स्टॉप डेड, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल मोमेंटम हैज आल्सो टू बी जीरो। अगर उन्होंने यूं कुछ किया, यूं एक डायरेक्शन में गए, तो मतलब दे हैव मोमेंटम सर्वाइव, मोमेंटम सर्वाइव्स, मोमेंटम को सर्वाइव नहीं करना चाहिए, तो ऐसे करना, ऐसे होगा, यूं दे विल स्टॉप डेड, दे विल कम टू रेस्ट। इसका मतलब जब ये रेस्ट में आएंगे इनइलास्टिक कोलिजन में, तो सारा काइनेटिक एनर्जी खत्म। सो दिस इज टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लॉस निकालूंगा, और लॉस निकलना चाहे पूरा लॉस, क्योंकि लॉस तो पूरा हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी दोनों लॉस हो गए, खत्म। तो लेट मी सी व्हाट इज द टोटल काइनेटिक बिफोर द कोलिजन? ki 1/2 mu स्क्वायर प्लस 1/2 mu स्क्वायर, किसके बराबर? दोनों को ऐड करो तो mu स्क्वायर। यह है काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन। अब तो कोलिजन हो गया, कोलिजन तो हो गया, दे हैव स्टॉप्ड डेड टू कंजर्व मोमेंटम, और हमें ये आइडिया मिला, तो लॉस काइनेटिक एनर्जी तो सारा गया। तो लेट मी सी डेल्टा क्यू, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, 1/2 m1 m2 by m1 plus m2 by our formula u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे अब मैं यहां यह सबस्टिट्यूट करूंगा सारा कुछ, देखता हूं क्या लॉस जो है वो बराबर mu के बराबर है कि नहीं। लेकिन आपको पता है लॉस होना चाहिए टोटल लॉस, तो लॉस पूरा होना चाहिए mu स्क्वायर। तो लेट मी फाइंड द लॉस। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू लॉस इज इक्वल टू 1/2 m1 m स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मास सेम है, डिवाइड बाय 2m। व्हाट इज u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर? दैट इज u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस u1 u2 cos ऑफ थीटा। ओके, लेट मी कीप इट लाइक दैट। चलो, ये m और m कैंसिल हो गया, तो अब क्या लिखूंगा मैं? डेल्टा क्यू को, डेल्टा के को क्या लिखूंगा? 1/4 m ऊपर, m ऊपर। चलो ठीक है, ओके, कैसे करेंगे? चलो इसको अभी कर लो आप, है? लेकिन टोटल लॉस मींस mu स्क्वायर टोटल लॉस होना चाहिए। चलिए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, बताइए, 1/4 m ऊपर, u स्क्वायर, वो भी u है, इसका भी u वेलोसिटी, इसका भी u वेलोसिटी, u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर। व्हाट इज cos थीटा? एंगल बिटवीन द टू वेलोसिटीज, एंगल बिटवीन द टू वेलोसिटीज ये था ना, ये वेलोसिटी u और ये वेलोसिटी भी u, तो इनके दरमियान क्या एंगल है? इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के दरमियान क्या एंगल है, जरा बताइए। शाबाश, कहीं ये तो नहीं सोचते कि ये 0 है? नहीं, ये 180 है, बिकॉज दे आर अपोजिटली
they are moving in the opposite directions. Cos 180, चलो cos of 180, ये हुआ m/4 2u स्क्वायर, ये -1 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, होगा +2u स्क्वायर, 4u से 4 कैंसल्स, दैट इज mu स्क्वायर. You get the same answer as mu स्क्वायर. मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया एक्सट्रीम एग्जाम्पल क्योंकि इसका आंसर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पहले ही था. आई गॉट द सेम आंसर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. U1 और U2 में देखना है एंगल क्या है, वो एंगल फैसला करेगा कि हाउ मच इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. सो in next lecture now I will go to more examples and applications, and most of the applications, most of the literature is given in my application app, which can be which you can download from the Google Store under the name Tantray Sir Physics Classes. तो वहाँ collision का निकालिए of daily practice problems, और उनका सोल्यूशन भी दिया है, लेकिन सोल्यूशन पहले मत देखिए, पहले मेरे लेक्चर वॉच कीजिए, फिर सोल्यूशन भी देखने की जरूरत पड़ेगी तो सोल्यूशन भी देख लो. फिलहाल इस चीज को प्रैक्टिस करो, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको प्रैक्टिस करो, एंड लेटर थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू. थैंक यू. एंड दिस